Jai Hind, Vande Mataram students. Last part we studied the properties of acid and base. Now in this part we will try to understand that how strong is acid and base and what are the indicators to determine that acids are strong or weak. Okay, so that one we will try to understand in this session. How strong are acid or base solution? We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and base. Means indicator play a very important role to determine whether any solution is acid or base. We have also learned in the previous section about the dilution and decrease in concentration of hydrogen or hydroxide ion in the solution. Means the presence of hydrogen ion or hydroxide ion has determined whether the solution is acidic or basic. We can quantitatively find the amount of these ion presence in the solution. Can we judge how strong a given acid or base is? Means to know the strongness, means to know the concentration, to know how much stronger or how much weak is acid or base, how it is for us to determine, or which indicators are that. We can do this by making use of universal indicator, which is a mixture of several indicators, means certain kinds of chemical. The universal indicator shows the different color at different concentration of hydrogen ion in solution. A scale of measuring hydrogen ion concentration in a solution is called the pH scale, okay, which is developed by the scientist. The P in pH stand for Potenz, that is the German word, which meaning on the presence of hydrogen ion in the solution. Okay, so on the pH scale we can measure the pH generally of 0 to 14. बच्चों आप लोगों को मालूम होगा जिस तरह से आप लोग नंबर लाइन में 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर काउंट करते हो और 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर काउंट करते हो, सिमिलरली जो आपका ये पीएच इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर जो है वो 0 to 14 के बीच में होता है एंड 7-1 इट इज एग्जैक्ट इन मिडल. जो पोजीशन इंटीजर में 0 की है वो पोजीशन जो है इन पीएच इंडिकेटर में 7 की है. सो 7 से अगर राइट साइड में अगर आप मूव करते हो, बराबर है, तो बेसिसिटी बढ़ती चली जाती है, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अगर पीएच अगर ये इंडिकेटर बताता है तो बेसिक वो चीज़ ज़्यादा है और एसिड कम है. लेकिन अगर 7 से अगर आप इस साइड में जा रहे हो तो 7, 8, 9 सॉरी 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1, 0. तो 0 में सबसे ज़्यादा एसिड होगा और सबसे मिनिमम बेस होगा. 1 में और उससे कम, 2 में और उससे कम, 3 में और उससे कम, 4 में और उससे कम, 7 और 6 के बीच में किसी भी चीज़ की एसिडिटी का प्रोपोर्शन सबसे कम रहेगा और बेसिसिटी का प्रोपोर्शन जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा. इज इट क्लियर? सो ये आपको ध्यान में रखना है. मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपको इससे आइडिया आएगा. एग्जैक्टली आप देख सकते हो ये जो फिगर है चिल्ड्रन, ये दिस वन, ये जो है इंडिकेटर है पीएच के लिए. आप लोग जो है सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको देख सकते हो. ओके, सो पीएच इज अ इंडिकेटर विच डिटरमाइन द एसिड एंड बेस, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक या स्ट्रॉन्ग जो है बेस है. तो 7 नंबर क्या इंडिकेट करता है? इट शोज द न्यूट्रलाइज पोजीशन, यानी जहाँ पे कोई भी चीज नाइदर बी एसिड नॉर बी बेस, यानी न्यूट्रल पोजीशन में होगी, दैट इज द इंडिकेटेड बाय नंबर 7. खास करके जहाँ पे जो डिस्टिल्ड वाटर है, it is in that position because it is neutralized, it is neither acidic nor basic. The pH of neutral solution is 7. Values less than 7
on the pH scale represent the acidic solution. As a pH value increases from 7 to 14, it represents an increase of OH ion concentration in the solution. That is increase in the strength of alkali. Generally, paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. The strength of acid or base depend on the number of pH ion. आप यहाँ पे देख सकते हो कि कलर जो है डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह से जो है वो चीज़ एसिड होगी या बेसिक होगी. अगेन आई एम शोइंग यू, सो यू कैन सी हियर. ये जब आप जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो, अगर आप किसी भी एसिड में अगर आप ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का ड्रॉप डालते हो, अगर ये कलर आया तो यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर ये टाइप का कलर आया तो वो जो है एकदम वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस बनने की तरफ जा रहा है. और सिमिलरली अगर 14 नंबर जैसा डार्क कलर आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है. The strength of acid and base depend on the number of H ion and OH ion. Means हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन जिसमें ज़्यादा होंगे वो चीज़ एसिडिक होगी, और हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें ज़्यादा होंगे वो चीज़ बेसिक होगी. If we take the hydrochloric acid and the acetic acid, the same concentration, say 1 molar, and then produce the different amount of hydrogen ion, acid that gives the more than H ion are said to be the strong acid, and acid that give the H ion less is the weak acid. Can you now say the weak and strong base? Yes, of course. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जितना जो है हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा दिखाएगा उतना जो है पीएच ज़्यादा होगा, और जितना कम दिखाएगा उतना जो है उसका पीएच जो है कम होगा. ओके, अभी आगे क्वेश्चन पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ. हमारी ज़िंदगी में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है. मीन्स कोई भी चीज़ एसिडिक या बेसिक होगी वो हमको कैसे अफेक्ट करेगी. लेट्स टॉक अबाउट इट. आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? Our body work within the pH range 7 to 7.8 बराबर है, यानी कि न्यूट्रलिटी और बेसिसिटी के बीच में, यानी एसिड बहुत माइल्ड होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली द नैरो रेंज of pH change when pH of rainwater is less than 5.6. It is called acid rain. When acid rain flow in the river, it lower the pH the river water. The survival of aquatic life in such river become difficult and they are not able to survive. So you can understand by that what is the importance of pH in our life. What is the pH of the soil in your backyard? Backyard means you can say in here in our surrounding. Plants requires a specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH of the manner described below in acidity. Also, you can note down which planets are growing in the region from which you have collected the soil. pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces the hydrochloric acid. I already explained you detail in the chapter life process in the digestion of food. So I am not going to deeply explain you this concept here. Okay, it helps in the digestion of food without harming the stomach. Why it is not harm the stomach? That also cause I told you, just recall it. During the indigestion of the stomach produces the too much acid and this cause the pain and irritation. To get rid to this pain, people use bases called the antacid. One of such remedy much have been suggested by you at the beginning of this chapter. These antacid neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, that is the milk of magnesia, the mild base, is often used for this purpose. Next, pH changes as a cause of tooth decay. So many times when ages has passed on, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दांतों में जो है कमजोरियाँ आनी शुरू होती है. रीज़न क्या है कि हम लोग जब अपने दांतों को लेकर कंसंट्रेशन नहीं करते, दांत टू द टाइम साफ नहीं करते हैं, तो दांतों में जो है अंदर जो है जर्म्स बढ़ जाते हैं और वो हमारे दांतों को जो है क्या करते हैं, वीक करते हैं. तो हम उसको निपटने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पेस्ट इस्तेमाल करते हैं. उसमें मैक्सिमम कैल्शियम कार्बोनेट होता है. चूना होता है. चूना क्या करता है, वो जो है क्या कहते हैं अंदर पैदा हुआ बैक्टीरिया
जो एसिड पैदा करते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। दैट वाई इट इज एडवाइज कि रात के समय रात को ब्रश करके सोया करो, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के प्रेजेंस में जो है बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे और अपने उनका पीएच लेवल मेंटेन रहेगा एंड टीथ विल नॉट बी वीक, कमजोर नहीं होंगे। इज इट क्लियर? सो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी एसिडिटी बढ़ जाती है तब। Tooth animal made of the calcium hydroxide, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body. This one also I explained you in the digestion time. It does not dissolve in water, but it corrodes when the pH of the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produces acid by dehydration of the sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent to clean the mouth after eating food using the toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth and neutralize the excess acid and prevent the tooth decay. Okay, and next, self-defense by animal and plants through the chemical warfare. Okay, they also produce this kind of acid to protect themselves. Have you ever been stung by the honey bee? कभी हनी बी ने काटा है? बराबर है, देखना जिसको काटा उसकी क्या हालत होती है। Bee sting hives an acid which cause pain and irritation due to the mild base like baking soda on the stung area given relief. अब क्या होता है कि जो हनी बी का जो ये होता है जहर होता है उसमें मेलाटीन करके एक एसिड होता है बच्चों, बराबर है, और जब उसके ऊपर बेकिंग सोडा डालते तो बेकिंग सोडा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, बिकॉज एसिड एंड बेस मेक सॉल्ट एंड वाटर एंड इट सब्सिडाइज इट्स इफेक्ट, एंड ड्यू टू दैट रीजन जो स्वेलिंग पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इज इट क्लियर? For clear, use the mild base like soda on the stung area gives relief. Stinging hair of the nettle leaves inject menthonic acid causing burning pain. आपको ये पीछे के पार्ट में एक प्लांट दिया हुआ है, नेचर प्रोवाइड ये प्लांट बच्चों मोस्टली आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा और कहीं पे भी मिलता नहीं है। ये प्लांट जो है इतना खतरनाक होता है कि बच्चों अगर इसमें जो है आपका पैर वैर कुछ पड़ जाए तो पूरे उसमें जलन होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक टाइप का एसिड रिलीज करता है जो बॉडी को जो है तकलीफ देता है, बराबर है। फिर इसको जो है सब्सिडाइज करने के लिए जो है गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है सर्टेन प्रोपोर्शन बेस होता है जो इसके असर को सब्सिडाइज करता है। ओके, इसको जो है हिंदी में बिच्छू घास बोलते हैं, इसको जो है पहाड़ी लैंग्वेज में उत्तराखंड के जो लोग हैं वो लोग जानते हैं, इसको सिसोन बोलते हैं, नेपाल साइड में इसको सिस्नु बोलते हैं। ओके, एंड इंग्लिश इट इज कॉल्ड नेटल। Nettle is the herbaceous plant which grow in the wild. Its leaves are straight hairs which cause the painful sting when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dog plant, which often grows beside the nettle in the wild. Can you guess the nature of the dog plant? So definitely वो basic होगा, बराबर है। So next time to know what to look out if you accidentally touch the nettle plant while tracing area, you aware of any your effective traditional remedies in such thinking. इतना पढ़ने के बाद में बच्चों अगला जो दिया हुआ है सॉल्ट। तो एसिड और बेसिक जब बेस केमिकली रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस बेसिकली सॉल्ट एंड द वाटर। तो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइज पोजीशन है। इज इट क्लियर? और कॉमन सॉल्ट जो है हमको नेचर में से मिलता है। कैन यू गेस व्हाई द पिक्चर ऑफ गांधी जी इज गिवन हियर रिगार्डिंग मैटर ऑफ सॉल्ट? डेफिनेटली दिस इज अ हिस्टोरिकल इवेंट बट इट इज एसोसिएटेड विथ साइंस। इसका आंसर जरूर आप लोग ढूंढना। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के सॉल्ट बनते हैं, उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एंड अमंग ऑफ दैट वन इज द ब्लीचिंग सोडा। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर?
क्लॉथ को क्लीन करने के लिए, किसी सरफेस को वाइटिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद में अगला दिया हुआ है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा आप लोग को जानते हैं घर में ढोकला वगैरह फर्मेंटेशन के लिए काम आता है, बराबर है। इसके अलावा जो है वॉशिंग सोडा, कपड़े वॉश करने के काम में आता है। इसके अलावा एक और सोडा है दैट यू नो वेरी वेल, दैट इज द POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इन सब का अलग अलग जो है यूजेज हैं एंड वेरी डिटेल दैट यूजेज आर गिवन देयर इन एग्जाम। मोस्टली जो है इनके यूजेस वगैरह ज़्यादा पूछते हैं, तो डेफिनेटली आप इनको रीड करेगा। ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या हैं, बेकिंग सोडा के यूज़ क्या है, वॉशिंग सोडा के यूज़ क्या है, एंड लास्ट द यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, बराबर है। आप लोगों को ध्यान होगा जब बोन वगैरह में क्रैक आ जाता है तो उसे सेटल करने के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम लोग जो है एक चैप्टर जो है एनवायरमेंटल साइंस से लेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग शुरू करेंगे। ओके, सो हियर दिस चैप्टर कंप्लीटेड। बाय, सी यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।